everyone, myself Anuradha Prabhakaran welcomes you all to SST Edupedia. Today I am going to teach you about voting and types of voting, which is company meetings part 2 of 11th standard secretarial practice book. So here, what is this voting, students? Voting means it is the opinion which is being given by other person. So here, voting का मतलब क्या होता है? Voting का मतलब जो सलाह, जो opinion, जो राय, not सलाह, we can say राय, जो राय आप लोग देते हो, that is the voting. वोटिंग दो किस्म से की जाती है. कैसी की जाती है वोटिंग? या तो फेवर के थ्रू या तो अगेंस्ट के थ्रू. ना फेवर क्या होता है? फेवर का मतलब होता है हित में करना, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ करना. ओके अगर अगेंस्ट में या खिलाफ, वोटिंग दो चीज की हो सकती है, खिलाफ में भी हो सकती है और फेवर में भी हो सकती है. फेवर का मतलब सपोर्ट में, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ में. सो ये वोटिंग. अभी हम देखेंगे कि कंपनी में कितनी तरह की वोटिंग होते हैं. कंपनी में जो पहला वोटिंग होता है, द टाइप्स ऑफ वोटिंग इन द कंपनी, द फर्स्ट टाइप ऑफ वोटिंग इन द कंपनी इज वोटिंग बाय वॉइस. दैट मीन्स वॉइस ऑफ acclamation. Now what is this voice of acclamation? In voice of acclamation, the chairman says those persons who are in favor to say yes. Now, those who are in favor say yes. The chairman keenly listens to the sound. Afterwards, the chairman says those persons who are against to say no. Then again the chairman keenly and deeply listens to the voice. And according to the wavelength of the voice, the decisions are made. If chairman think that the voice of yes was more, then the decision will be on that part. If chairman thinks so that the voice of no was more, then the decision will be on that part. Likewise, the decision will be made very easily. So, voice of acclamation, जिसके अंदर हमारा चेयरमैन उन लोगों को जोर से यस बोलने के लिए कहते हैं जो इस निर्णय के हित में है. उसके बाद में चेयरमैन ध्यान से सुनते हैं, फिर उन लोगों को नो कहने के लिए कहते हैं जो खिलाफ है. चेयरमैन फिर से ध्यान से सुनते हैं और जिनका भी आवाज जोर से रहेगा, यस या नो, उसके हिसाब से निर्णय ली जाती है. सो वॉइस ऑफ एक्लेमेशन. नेक्स्ट कम्स वोटिंग बाय डिविजन. In voting by division, the chairman will make two divisions. That means the chairman will divide the members in two different groups. One group will be consisting of those persons who are in favor of the motion. The chairman will say to those persons to go and stand on one corner of the meeting hall. And those who are against the motion to go and stand on the another corner of the meeting hall. Now, one person will be appointed by the chairman known as teller. That teller is being told to go and count the number of persons in favor who are standing on one side and those who are against who are standing on the side. Likewise, the decision will be made according to the counting of the teller or the counting made by the teller. अब इसमें क्या होता है कि हमारा चेयरमैन मेंबर्स को बोलते हैं दो भाग में आप विभाजित हो जाइए. एक ग्रुप मीटिंग हॉल के एक कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं जो कि हित में है, दूसरा ग्रुप मीटिंग हॉल के दूसरे कॉर्नर में जाके खड़े हो जाते हैं जो खिलाफ है. अब हमारा चेयरमैन अपने साथ में एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसका नाम है टेलर. वो जाता है और काउंट करके आता है और उसके मुताबिक निर्णय ली जाती है. तो दो चीज पढ़ा अभी तक हमने, वॉइस ऑफ एक्लेमेशन, सेकेंड इज वोट बाय डिविजन. Next comes voting by show of hands. Now what is this show of hands? You can see I am also showing you the hands. What I am doing you students, मैं क्या कर रही हूँ आपको? I am showing the hands. Like that, like this only happens in the meeting hall. Here the chairman says those persons who are in favor to raise the hand, to show the hand. Now the teller counts the number of hands raised. Then again those persons who are against are told to raise the hand.
Again, the teller counts the number of hand raised against the motion. The decision are made accordingly the hand raised, the number of hand raised. अब शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है? हमारा चेयरमैन उन लोगों को हाथ उठाने के लिए कहता है, हाथ बताने के लिए कहता है जो हित में है। टेलर उनका नंबर काउंट करता है, उसके बाद में उन लोगों को हाथ उठाने के लिए कहता है जो खिलाफ है। टेलर फिर से उनका नंबर काउंट करता है और उसके मुताबिक निर्णय ली जाती है। वॉइस ऑफ एक्लेमेशन, वोट बाय डिवीजन, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट कम्स वोटिंग बाय बैलेट। बैलेट मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वोटिंग। बैलेट मेथड बहुत पुराने जमाने का वोटिंग है। बैलेट में क्या होता था पुराने जमाने में? दे यूज्ड टू गो टू द पोल बूथ। हम वहां पे जाते थे, बूथ रूम में जाते थे, नॉट बूथ रूम में जाते थे। देन व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोगों को सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद में एक पेपर दी जाती थी। वो पेपर में अलग अलग चिन्ह होते थे, डिफरेंट सिंबल्स वेयर देयर। वो सिंबल में हम स्टैंप लगाते थे, फोल्ड करते थे, बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। हैज दिस बॉयज डूइंग। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं हम लोग यहां पर? अभी यहां पर भी ऐसी होता है। The chairman will be placing one box in front of him or her known as ballot box. Now each and every person will be given a piece of paper. In that piece of paper, they have to write either favor or against the motion. Then they will fold the paper and they will put it in the ballot box. Then after the voting is over or after the voting gets over, the teller is being told to open the box and to count the number in favor and against. And likewise the decision are made. Ballot method में चेयरमैन के सामने एक बैलेट बॉक्स रखी जाती है। सभी लोगों के पास एक एक पेपर दी जाती है। उस पेपर के ऊपर फेवर या अगेंस्ट लिखना रहता है, उसे फोल्ड करने का रहता है और बैलेट बॉक्स के में डाल दिया जाता है। फिर टेलर को बोला जाता है कि बैलेट बॉक्स को खोलिएगा और काउंट कीजिएगा। टेलर बैलेट बॉक्स खोलता है और काउंट करता है और उसी के मुताबिक जिनका भी चिट्ठी पे, जिनका भी चिट्स पे, जिनका भी पेपर पे ज्यादा रहेगा फेवर या अगेंस्ट, उनके हित पे निर्णय चली जाती है। सो वोटिंग बाय बैलेट। तो पहला क्या था? वॉइस ऑफ एक्लेमेशन, यस और नो, vote by division, show of hands, ballot method. Next comes voting by postal ballot. The central government may prescribe some of the company to do the voting by postal method. सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी किसी किसी कंपनी को बोल सकते हैं कि आप पोस्टल मेथड से वोटिंग कीजिएगा करके, पोस्ट के थ्रू वोटिंग कीजिएगा करके। तो उन लोगों को पोस्ट के थ्रू वोटिंग करना पड़ता है। दे हैव टू डू देयर वोटिंग थ्रू पोस्ट। सो हियर वोटिंग बाय पोस्टल मेथड। नेक्स्ट कम्स द लास्ट मेथड ऑफ वोटिंग इज वोटिंग बाय पोल। व्हाट इज वोटिंग बाय पोल? इट इज सिमिलर टू वोटिंग बाय बैलेट। वोटिंग बाय पोल जो होता है वो बैलेट के जैसे ही होता है, लेकिन क्या फर्क है इसके अंदर? इन पोल देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन बैलेट एंड पोल। Poll is the last method of voting. In this, a box is kept in front of a chairman, and that is known as poll box. चेयरमैन के सामने एक बॉक्स रखी जाती जिसका नाम है पोल बॉक्स। Everyone is given one paper. सभी लोगों को पेपर दी जाती है। उस पेपर के अंदर they have to write full details along with the number of shares held by them. उसके अंदर उनको अपना डिटेल्स भरनी पड़ती है और कितना शेयर उनने लिया है वो भरना पड़ता है। 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर एंड ऑल, एंड फेवर और अगेंस्ट वो भी लिखना पड़ता है। देन दे विल फोल्ड द पेपर एंड दे विल पुट इट इन द बैलेट बॉक्स। फिर लोग पेपर को फोल्ड करेंगे और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। अब इसमें फर्क क्या है? At last, the ballot box or the poll box, the poll box will be opened by the teller, and he will count or she will count the number of the votes in favor or against. इसमें फर्क क्या है फिर बैलेट और पोल में? इन बैलेट the rule was
वन पर्सन वन वोट। बैलेट में क्या रूल था? एक इंसान एक वोट, आइदर फेवर और अगेंस्ट। लेकिन पोल में ये रूल कि वन शेयर वन वोट, एक शेयर तो एक वोट, दो शेयर तो दो वोट, तीन शेयर तो तीन वोट। दिस इज द डिफरेंट। Another difference is that in ballot, proxies are not allowed to vote. But in poll method, proxy are allowed to vote. Ballot में proxy vote नहीं कर सकता, लेकिन poll method में proxy vote कर सकता है। Now who is this proxy? Proxy कौन होता है? For example, if I was unable to attend the meeting, या आई एम अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, अगर मैं मीटिंग नहीं जा पाई या फिर मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही हूं तो आई कैन सेंड ऑन बिहाफ ऑफ मी सम अदर पर्सन टू अटेंड द मीटिंग। मैं अपने बदले में किसी और इंसान को मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज सकती हूं। दैट सम अदर पर्सन इज नोन एज प्रॉक्सी। वो जो अनदर पर्सन है उसका नाम है प्रॉक्सी। तो पोल मेथड में प्रॉक्सी आ सकता है, पोल मेथड में प्रॉक्सी अलाउड है। ओके, सो हियर दिस वाज वोट बाय पोल। पहला कौन सा मेथड था? वोट बाय वॉइस ऑफ एक्लेमेशन और वोट बाय वॉइस जिसमें यस और नो बोला। सेकेंड वन वाज वोट बाय डिविजन, दो डिवाइड हुआ, फेवर एंड अगेंस्ट। Third one was vote by show of hands. Fourth one was vote by ballot. Fifth one was voting by postal ballot. And the last but not the least, it was voting by poll. Hope so that you liked my video, and you will not forget to press the bell icon and to subscribe our channel. And thank you very much for listening me. I will be soon in front of you with another video. Thank you all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you.